हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। टुडे वी आर स्टडिंग combustion. Now what is meant by combustion? Combustion, a chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called the combustion. Okay, it is a chemical process in which substance react with oxygen present in environment. So it is a chemical process. During this reaction, heat is released. The process is known as combustion. Okay, here the substance which undergo combustion is called combustible substance. Okay, the substance which undergo combustion is known as combustible fuel. It is also known as fuel. This fuel may be solid, liquid or gas. In this chemical reaction, heat is released. This released heat is in the form of either flame or glow. Okay, this released heat is in two forms, either it is flame or it may be glow. Now here we say that combustion is happened, the product produce heat, it is a chemical process, but every time there is a rise in temperature. Whenever there is release in heat, the temperature must be rises. Okay, now in the case of combustible substance, the temperature is must be matched to its ignition temperature. Now we study what is meant by ignition temperature. It is the lowest temperature at which a substance catches fire. Okay, it is the lowest temperature at which temperature is low at which the substance catches fire. Okay, here you studied as substance react with oxygen. Okay, this substance catches the fire. It is low temperature and this temperature is nothing but the ignition temperature of that substance. Okay. Combustible substance not catch fire as its temperature is lower than its ignition temperature. Whenever this combustible substance matches its temperature, then and then heat is released. There is reaction is happen and heat get released. At that same time, when it not match its ignition temperature, no fire occurs, and if there is no fire, no heat energy is released. Understood? Now we study the inflammable substance. What is meant by inflammable substance? Okay, the substance which have very low ignition temperature. Okay, substance have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substance. Means if its ignition temperature is low, at the same time the substance catch fire with a flame, either flame, it is a inflammable substance such as पेट्रोल, अल्कोहल एंड एलपीजी. हमें पता है कि जब भी इन्हें तो बस थोड़ी सी एक बोलते हैं ना माचिस का तिनका ही चाहिए कि आग लग जाती है. तो वो आग लगती है वो किस सब्सटेंस में लगती है? इट इज़ अ इनफ्लेमेबल सब्सटेंस. जिन्हें बस थोड़ा सा निमित्त ही चाहिए होता है, एक आग का तिनका चाहिए होता है जिसकी वजह से बड़ा सा फायर बन जाता है. अब हमें पता है कि जब फायर बहुत सारी लग जाती है तो हाउ वी कैन कंट्रोल द फायर. फायर को हम कंट्रोल कैसे करते हैं? फर्स्ट वी कॉल दी फायर एक्सटिंग्विशर्स. हमें फायरमैन को बुलाना चाहिए. फायरमैन क्या करते हैं? जब बहुत सारी आग लग जाती है तो बोलते हैं कि चलिए जल्दी से पानी डालिए, पानी डालिए. वाई दे टोल्ड दैट यू मस्ट वाटरेट द थिंग. क्यों हमें पानी डालना है? बिकॉज एट द सेम टाइम वो क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर तुरंत से डाउन कर देते हैं. विच टेम्परेचर? इग्निशन टेम्प. ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर को वो डाउन कर देते हैं. बिकॉज जब हम पानी डालते हैं तो उसका टेम्परेचर एकदम से बनी हुई हीट डाउन हो जाती है
इग्निशन टेम्परेचर डाउन हो जाता है। या फिर जब लकड़ी जल रही होती है तो हमें लकड़ी पे पानी डाल के आग बुझा देते हैं। पानी डालना मतलब कि उसका इग्निशन टेम्परेचर लो करना। एक बार टेम्परेचर लो हो गया तो फिर वहाँ पर आग तुरंत से बुझ जाती है। नाउ दिस combustions are of this combustion are of many types. First we study the rapid combustion. Rapid combustion. The gas burns rapidly and produce heat and light called rapid combustion. देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, गैस बर्न्स हो रही है और क्या मिल रहा है अपन को, हीट एंड लाइट। ओके, गैस क्यों बर्न हो रही है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड लाइट। So this reaction is very rapid reaction. That's why the name is given rapid combustion. Phosphorus burns in air at room temperature. पता है phosphorus एक ऐसा substance है, it is a chemical substance. Okay, ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट हो जाता है। अब रूम टेम्परेचर पे कैसे रिएक्ट हो जाता है, in environment there is a presence of oxygen. When this phosphorus mix with the environmental oxygen there is a big explosion. ठीक है, वहाँ पे एक्सप्लोजन हो जाता है। इसलिए फॉस्फोरस को हमेशा पानी के अंदर प्रिजर्व करके रखते हैं कि उसका और ऑक्सीजन का डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो। ओके, दैट्स वाई। और उसे रूम टेम्परेचर पे केरोसिन के अंदर, केरोसिन में प्रिजर्व करके रखते हैं। ओके, सेकेंड वन इज स्पॉन्टेनियस कंबशन। मटेरियल सडनली बर्स्ट। क्या होता है स्पॉन्टेनियस में, इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मतलब कि तुरंत से हो जाती है वो रिएक्शन। क्या होता है, मटेरियल है वो सडनली बर्स्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है, फ्लेम्स विदाउट एनी अपेरेंट कॉज, हमें पता नहीं है वो मटेरियल बर्स्ट हो गया है और उसकी फ्लेम बन गई है। इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जिसका कभी भी कुछ पता नहीं चलता है कि ये रिएक्शन हुई क्यों है, बस आग लग जाती है बिना किसी रीज़न के। हमें बोलते हैं शॉक सर्किट हो गया। क्या होता है शॉक सर्किट, पता है, वहाँ पर अचानक से एक्सप्लोजन हो जाता है। तो फिर क्या करते हैं अपन, इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं। इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, सबसे पहले तो पावर सोर्स उसका जो है वो बंद करवाता है, उसको कट करवाता है। अब वो कट हो गया तो उसकी जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर तुरंत से वो डाउन हो जाता है और फिर शॉक सर्किट रुक जाता है। नाउ अब हम कब से बोल रहे हैं कि इट इज़ अ फ्यूल है, फ्यूल है। फ्यूल क्या है, व्हाट इज़ अ फ्यूल, ठीक है। सो इट इज़ अ सोर्सेस ऑफ हीट एनर्जी। सो फ्यूल क्या है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। इन विच रिएक्शन, इन द डोमेस्टिक रिएक्शन और इन द इंडस्ट्रियल पर्पस। इंडस्ट्री में भी फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है सिर्फ हीट एनर्जी के लिए, और इन डोमेस्टिक वर्क में भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। सो इट इज़ द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। अब फ्यूल है तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। सो द आइडियल और गुड फ्यूल हैव सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स। द फ्यूल मस्ट बी ईजीली अवेलेबल, वो ईजीली अवेलेबल चाहिए। इट इज़ चीप, अगर उसकी कॉस्ट कम होगी तभी तो हम उसे परचेस करेंगे, ठीक है। इट बर्न्स इजीली, फ्यूल है तो वो बर्न भी होना चाहिए और इजीली बर्न होना चाहिए बिना टेंशन के। अगेन इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। अब फ्यूल अब बर्न करना है, किसके लिए करना है, हीट एनर्जी के लिए। अगर वो ज़्यादा अमाउंट पे हीट एनर्जी देगा तो उसमें हमारा बेनिफिट है। दैट्स वाई वी आर द गुड फ्यूल हैव these 4 important properties. It must be easily available, it is cheaper, it must burns easily, and it must produce large amount of heat energy. Now fuel है तो उसकी efficiency भी अच्छी चाहिए। Now we study the fuel efficiency. The amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of a fuel is called calorific value, ठीक है। अगर हम 1 kg फ्यूल को बर्न करेंगे तो कितनी हीट एनर्जी रिलीज होगी, कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो वैल्यू
जो है उसे हम बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू, और दिस कैलोरीफिक वैल्यू is expressed in a unit of kilojoule per kg, kilojoule per kg. नाउ फ्यूल इफ़िशेंसी क्यों हमें चेक करना है कि फ्यूल की इफ़िशेंसी अच्छी होगी, वो हमें चीपर रेट में मिलेगी तब हम उसे यूज़ करेंगे, और इसकी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि हमें उसकी इफ़िशेंसी चेक करनी पड़ेगी। तो हमें उसके लिए 1 kg फ्यूल को बर्न करना है, ये चेक करने के लिए कि आफ्टर बर्निंग ऑफ 1 kg फ्यूल हाउ मेनी हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस। मतलब हमें सबसे पहले उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू डिसाइड करनी है। वो पता चल गई तो हम फिर उसको, वो फ्यूल चीपर है या फिर वो हमारे यूज़ का है कि नहीं है, ये हम चेक करेंगे, और इसका यूनिट है किलो जूल पर केजी। अब हम फ्यूल बर्न कर रहे हैं हीट एनर्जी के लिए, तो ड्यूरिंग दिस बर्निंग फ्यूल कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो होंगे, ठीक है। हम कितना ही प्रोटेक्ट कर ले, कुछ भी कर ले, हर चीज़ का अगर कुछ यूज़फुल है तो कुछ हार्मफुल भी है, ठीक है। यूज़फुल है कि फ्यूल है, हमें उसको उससे हीट एनर्जी मिल रही है, हमें उससे बेनिफिट हो रहा है, ओके, बट इसके साइड इफ़ेक्ट भी है। नाउ वी स्टडी दी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्यूल बर्निंग। फर्स्ट, इट कॉजेज दी अस्थमा। पहले वो अस्थमा कॉज करता है। अब हम फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, ठीक है। इनकम्प्लीट कंबशन लीड्स टू कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। यस, यू रिकॉग्नाइज a very right thing that carbon monoxide is a very poisonous gas. It is a very poisonous gas, और अगर इस poisonous gas रिलीज हो रहा है तो हमें ड्यूरिंग इट इज़ वेरी डेंजरस, ठीक है। इसलिए इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन अ क्लोज रूम, इसीलिए बोलते हैं कि कोल को कभी भी क्लोज रूम में बर्न नहीं करते। द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस एंड इट कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दिस रूम। अगर हम कोल को बर्न कर रहे हैं क्लोज रूम में, तो उस रूम में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पूरे रूम में वो स्पेस ले लेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अगर उस रूम में कोई पर्सन सोया है तो जब वो कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करेगा, अपने अंदर लेगा, तो उसकी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए हमें बोलते हैं कि उस रूम में अगर कहीं फायर जल रहा है, कोल का फायर हो रहा है, तो उस रूम में हमें नहीं सोना चाहिए, ठीक है। थर्ड वन, अगर कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल, बहुत सारे फ्यूल से जिसका कंबशन होते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। बहुत सारे फ्यूल बर्न होते हैं तो उनका जो रिलीज प्रोडक्ट है इट इज़ अ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। जब दिस कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन अपने एयर में बढ़ जाता है तो इट कॉज अ ग्लोबल वार्मिंग। पता है दोस्तों, अभी हम सब बोल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पोल्यूशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। कभी भी बारिश होती है, कभी, जैसे हम पहले बोलते थे रेनी सीजन सिर्फ 4 मंथ का है, अब हम देखते हैं कि रेनी सीजन 4 मंथ से 3 मंथ्स हो गया है, या फिर वो 5 to 6 मंथ्स चलता है। किसी भी मौसम में बारिश हो सकती है। इट इज़ द साइड इफेक्ट ऑफ दिस कंबशन। Global warming is the rise in the temperature of the atmosphere of the earth. It also leads to rise in the sea level, ठीक है। पानी भी sea level बढ़ रहा है, causing floods in the coastal areas, floods भी आ रहे हैं। Now अब हमें बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जब हम कोल और डीजल की बर्निंग करते हैं तो एनवायरनमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाता है। इट इज़ अ कोरोजिव गैस, अगेन इट इज़ अ सफोकेटिंग गैस। ये कोरोजिव भी है और सफोकेटिंग एंड कोरोजिव गैस।
अब जब हम इस एनवायरनमेंट में ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन बर्न करेंगे, ठीक है, क्या क्या बर्न करेंगे, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, उनके साथ बारिश मिक्स हो जाएगी, तो ऐसे एनवायरनमेंट में क्या बनेगा, एसिड्स बनेगा, ठीक है। व्हेन ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन बर्न इट फॉर्म्स द एसिड। ऐसे एसिड के साथ जब ये रेन मिक्स हो जाएगा तो वो जो रेन की बारिश होगी, इट इज़ अ एसिड रेन, ठीक है। एंड दिस एसिड रेन इज हार्मफुल फॉर क्रॉप्स एंड सॉइल। और क्रॉप्स और सॉइल अगर हार्मफुल एसिड रेन की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गए तो फिर हम खाएंगे क्या। अगर हमें क्रॉप प्रोडक्शन प्रॉपर वे में नहीं मिलेगा तो हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, हमें खाना नहीं मिलेगा, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी। सो वी हैव टू प्रिवेंट दिस एसिड रेन। अब एसिड रेन को प्रिवेंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, द यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज अ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल इज़ बीइंग रिप्लेस। यस, यू हैव टू रिप्लेस द यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल। तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए उसकी जगह पे, वी हैव टू यूज़ CNG, कंप्रेस नेचुरल गैस। क्यों यूज़ करना चाहिए CNG, वी हैव टू यूज़ CNG। CNG क्यों यूज़ करना चाहिए, बिकॉज CNG प्रोड्यूसेस द हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट। ओके, CNG के जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स है वो ट्रेस अमाउंट में है एज कंपेयर टू डीजल एंड पेट्रोल। एंड CNG इज़ अ वेरी क्लियर फ्यूल, ठीक है। CNG क्लियर फ्यूल है और उसके जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स है वो वेरी ट्रेस अमाउंट में है एज कंपेयर टू डीजल एंड पेट्रोल। सो वी हैव टू go towards the use of CNG rather than use of petrol and diesel. Okay, thank you.